power of summation. For example, if our allowed symbols are A, B, so what is this? This is A and B only, of all strings having A and B of length 1. Okay, summation, will it include epsilon? No, because epsilon is having length 0. Okay, so what is this? Does it mean this? Summation square is summation into summation? Can I write it like this? Can I write like this? Yes. Okay, and this will lead you, this multiply by this is AA. Multiply means concatenation. This will multiply by this A, B. When A and B and A will concatenate, it will make BA, and lastly BB. So summation square is nothing but all strings having length 2. Okay. So can you tell me, if somebody asks you summation to the power n, what is the number of strings in this particular set? The number of strings will be 2 to the power n. 2 to the power n equal, or it means n length, all n length strings. So if somebody asks you a question, allowed symbols are A, B, and I want to find out summation to the power 12, what is the number of strings, or what is the number of strings in that particular set? It is simple, 2 to the power 12. Here only you will see that 2 to the power 1 is 2 only. Here 2 to the power 1, which is 2 strings. Here 2 to the power 2, which is 4 strings. If you ask this particular thing also, it is including summation, which is 2 to the power 0, which is 1. Okay, understood? So you can answer this question easily now. Now understand why we need automata, or what is the practical thinking behind all these things what we have studied till now. Okay, suppose it is given that number of allowed symbols are A, B, C up to Z, 0, 1, 2 up to till 9, all symbols like this and so on. This is not infinite. This is because alphabet cannot be a infinite sequence, it is a finite sequence. Okay, it is not infinite, but it is showing that it is having all these particular symbols. Okay, let us assume that we have a set of alphabet like this. Okay, now there is a program like this, void main, and like this return 0, something like this. This is a program. This is one program. This program for a compiler is nothing but a string, because all these are the symbols. And what is this? This is the combination of these symbols. And what is that finite sequence of all symbols? It is a string. That is what we have studied. Finite sequence of symbols, allowed symbols, is a string. So this is nothing but a string. Okay, this is something which is a string, and this string is one subset of all the possible programs in the world. Yes or no? If I try to make one superset of all the possible strings under the sky by using this, will it include all the programs under the sky? Yes or no? So this is one subset of that superset, and we can pass it to the compiler. The compiler will try to execute it. If it is having all the valid symbols, it will tell that no errors. If it is having any symbol which is not allowed, which is not here, let's say हमने यहाँ पे यूज कर लिया exclamatory sign, और ये exclamatory sign हमारे इस symbol में included नहीं था, तो compiler क्या कहेगा उसी समय? Error. तो कैसे पता चला कि error है? क्योंकि हमारे पास जो allowed
सिंबल्स हैं, ये सेट ऑफ अल्फाबेट है, उसके अंदर ये एक्सक्लेमेटरी अवेलेबल नहीं है और वो फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचा होगा। अगर वो फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचा तो तभी तो कंपाइलर ने बोला कि एरर आ गई है। सो दिस इज हाउ कंपाइलर वर्क्स यूजिंग ऑटोमेटा। ओके, व्हाट इज आवर गोल? आवर गोल इज, दिस इज व्हाट कंपाइलर इज डूइंग, यस और नो? वो क्या करता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को उठाएगा, कंपाइलर के अंदर भेजेगा, कंपाइलर है हमारा ये इस स्ट्रिंग को उठाएगा, इसमें भेजेगा और बताएगा कि ये स्ट्रिंग हमारी इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है कि नहीं करती है, यस और नो, जो हमने शुरुआत में बात की थी। अगर नो होगा तो एरर, और जहां पे भी नो आएगा वो उसकी लाइन नंबर कोड कर देता है ना, कि यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड वेरिएबल है या अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है या अनआइडेंटिफाइड कोई सिंबल आ गया। अगर वो सारे सिंबल्स मैच हो गए तो यस, नो एरर। यही तो होता है रियल लाइफ में, ठीक है। सो कंपाइलर इज नथिंग बट कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑटोमेटास। ओके, अब हमारे पास, हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पास लैंग्वेज दो तरह की हो सकती है, वन इज फाइनाइट, अनदर वन इज इनफाइनाइट। अगर हमारे पास लेट्स से ये चीज गिवन हो, एप्सिलॉन इज ए बी एंड एल इज ए बी ए बी बी ए बी बी, लेट्स से हमारे पास ये एल है और किसी ने कहा एस इज इक्वल टू ए बी, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर लीनियर सर्च करूंगा और फाइंड आउट करके आंसर यस और नो का तुरंत बता सकता हूं कि ये पर्टिकुलर थिंग इसमें मैच हो रही है या नहीं। लेट्स से किसी और ने आंसर दिया, किसी और ने पूछा ए सी, तो मैं क्या करूंगा, लीनियर सर्च करूंगा और इसमें देखूंगा ए सी लास्ट तक कहीं नहीं मिला। एग्जाम्पल देखो, ए बी को हमने उठाया, इसमें देखा ए बी है नहीं, ए बी है नहीं, ठीक है, हमने देखा ए बी है नहीं है, ये ए बी है यस, तो हमारा आंसर आ गया यस। लेकिन अब अगर ए सी को उठा के देखता हूं तो ए सी है नहीं, ये ए सी है नहीं, ए सी नो, ए सी नो, ए सी नो, ए सी नो, और हम स्ट्रिंग के एंड पे, अपने सेट के एंड पे पहुंच गए, हमें नहीं मिला, तो हमने आंसर इसके लिए क्या दे दिया, नो। तो ये तो लीनियर सर्च से काम हो जा रहा है। What if दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, ये तो हमारे पास लीनियर सर्च हो नहीं सकता ना, क्योंकि हमारे पास कितने प्रोग्राम है अंडर द स्काई, इनफाइनाइट। अगर उसका दूसरा एग्जांपल देखो, समेशन इज इक्वल टू ए बी एंड एल इज इक्वल टू लेट्स से ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए, ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए, तो ए बी ए एंड सो ऑन। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल, इनफाइनाइट। अब मुझे लेट से कोई बोलता है ए बी, तो मुझे मिल गया फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर कोई बोलेगा ए सी सर्च करो, तो क्या लीनियर सर्चिंग इसमें काम कर सकती है, लीनियर सर्च तो काम नहीं कर पाएगी इसमें, इस केस में। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें एक फाइनाइट ऑटोमेटा चाहिए जिसमें हम स्ट्रिंग को दें, जिसकी पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज हो और वो हमें आंसर नो और यस में कन्वर्ट करके दे। ये फाइनाइट ऑटोमेटा हमें चाहिए जो इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स के लिए भी आंसर यस और नो में दे सके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनाइट ऑटोमेटा। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। लेट्स से एक एग्जांपल से शुरुआत कर रहे हैं हम। L1 is a language which is having set of all strings. L1 is a language having set of all strings which starts with A. ये कुछ मैं स्टेप्स लिखा रहा हूं, इससे आसानी से DFA आपके बन जाया करेंगे। तो सबसे पहले आपको कभी भी कोई भी लैंग्वेज मिले तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई अल्फाबेट। आइडेंटिफाई अल्फाबेट मतलब यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट क्या है, हमें सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट्स विद ए, तो ए तो है ही, लेकिन उसने ये गिवन होगा ए कॉमा बी, तो हमारे आइडेंटिफाई अल्फाबेट क्या होगा, ए एंड
बी, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये समझ लेना है। दूसरी बात, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज। फिर उसके बाद ये लैंग्वेज आइडेंटिफाई करो कि ये लैंग्वेज क्या कहती है। तो लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लिख लेना है L1। कैसे? L1 का सेट बनाना है। ट्राई टू राइट डाउन फ्यू स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, इंक्रीमेंटल ऑर्डर में उसको लिखना शुरू करें। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट्स विद ए। ओके, सो सबसे पहली स्ट्रिंग क्या होगी जो ए से स्टार्ट होगी? नहीं, एप्सिलॉन नहीं होगी बेटे, ए होगी। एप्सिलॉन कैसे ए से स्टार्ट हो रही है? नहीं, ए है ही नहीं ना उसमें, ठीक है। तो सबसे पहली स्ट्रिंग होगी ए, फिर उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग क्या होगी? ए बी जो है वो ए के बाद में आएगा, ठीक है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज आइडेंटिफाई दी लैंग्वेज। आइडेंटिफाई दी लैंग्वेज में जो आपको ये वर्ड्स में लिखी हुई है उसका सेट बना लेना है। तो ए कॉमा ए, दूसरी क्या होगी? ए बी, उसके बाद ए बी, फिर नेक्स्ट क्या होगी? ए, उसके बाद ए बी, फिर उसके बाद ए बी ए। इंक्रीमेंटल ऑर्डर में लिखो, कोशिश करो। इतने लिख लिए बहुत है, इनफाइनाइट हो सकती है, तो हमने कुछ लिख लिए बहुत है, ठीक है। ये तीन, सबसे पहले ये दो काम कर लेने हैं, आइडेंटिफाई दी सिंबल, आइडेंटिफाई दी लैंग्वेज। उसके बाद टेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग, टेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग एंड ड्रॉ द स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? जैसे हमारी हड्डियों का ढांचा। ऐसे ही हमने क्या किया, एक स्ट्रेट बनाई। ये जब हम बनाते हैं ये स्ट्रेट है, और उससे पहले जब हम एक एरो बना देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्ट स्टेट। तो इसको लिख लो एक बार, ये है स्टार्ट स्टेट, ये है हमारी फाइनल स्टेट, ट्रांजिशंस। अब हमें क्या करना है? स्केलेटन बनाना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है इसमें? ए। तो हमें एक स्टार्ट स्टेट से चलना है विच इज लेट्स से ए, कैपिटल ए। ये नेम है स्टेट का और कुछ नहीं है। इससे इस कैपिटल ए से इस स्मॉल ए का कोई मतलब वास्ता नहीं है। आप इसमें ए की जगह अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी कंफ्यूजन ना हो तो इसको क्यू नॉट रख देता हूं, क्यू नॉट। क्यू नॉट से जब भी ए रिसीव हो तो हम दूसरी स्टेट में चले जाएं। इससे क्या, इसका मतलब क्या हुआ? हम बाय डिफॉल्ट किस में है? जहां पे ये स्टार्ट स्टेट हो। बाय डिफॉल्ट कहां पे है हम? स्टार्ट स्टेट में। ये स्टार्ट स्टेट है। उससे हमने एक ए को रिसीव किया, दिस इज 1 ए, हमने ये रिसीव किया, तो हम किस में पहुंच गए? Q1 में, और ये एक्सेप्टेबल है। तो यानी कि Q1 क्या हो गई हमारी? फाइनल स्टेट। अगर हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाते हैं तो वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट। तो ये हमारा स्केलेटन तैयार हो गया है। हमने क्या किया? स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग को उठाया और उससे हमने अपना स्केलेटन बना लिया। लेकिन क्या इससे डबल ए एक्सेप्ट हो जा रहा है? नो, it is not accepting double A, it is only accepting A and there is no way we can go by using another A. If we have received one A, तो उसके बाद यहां पे कुछ भी आता रहे, does it matter to us? No. अगर इस A के बाद B आ जाए या A आ जाए, हमें कोई फर्क पड़ेगा उससे? No, that is acceptable, right? बिकॉज इसके बाद ये ए से स्टार्ट हो चुके हैं, उसके बाद ए आए या बी आए, नन ऑफ आवर बिजनेस। तो हम क्या करेंगे? इसको सेल्फ लूप में बना देंगे, ए कॉमा बी। उसके बाद कितने भी ए आए कितने भी बी आए, डजंट मैटर। तो ये हमारा ऑटोमेटा बन गया। ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए, इज इट कंप्लीट? नो, इट इज नॉट कंप्लीट। फॉर द कंप्लीशन ऑफ this automata, what we have to do is, because we have two allowed symbols A and B, we have a state for A but we do not have a state for B. अगर हमारी स्ट्रिंग लेट से आई बी ए, तो इसको रिजेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस रिजेक्शन के लिए लेट से हम यहाँ पे बैठे थे और बी रिसीव किया हमने, तो बी रिसीव करने के बाद कहाँ जाए हमें तो पता नहीं है, तो ये हमारा ऑटोमेटा क्या हो जाएगा? कंफ्यूज।
वो स्टेट नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम एवरी स्टेट वी शुड हैव ट्रांजिशन फॉर एवरी सिंबल। ए के लिए है, बी के लिए नहीं है। यहां पे ए के लिए भी है और बी के लिए भी है, तो दिस इज कंप्लीट, बट दिस इज नॉट कंप्लीट। तो हमें क्या करना है, यहां से बी का एक ट्रांजिशन बनाना है जो Q2 में जाए और यहां से A, B यहीं पे पड़ा रहे, एंड दिस इज कॉल्ड डेड स्टेट। ये हमारी डेड स्टेट है। डेड स्टेट कौन सी होती है, जो फाइनल, जहां पे पहुंचने के बाद आप फाइनल स्टेट पे कभी भी किसी भी हाल में जा ही नहीं सकते। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर ऑटोमेटा पूरा बन गया है। नाउ this was the third step. Take the smallest possible string and draw the skeleton. If set of all strings are infinite. ये कब करना है, जब हमारे पास इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हो। यहां पे इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स है ना, तो हमें ये काम करना है। लेकिन अगर फाइनाइट हो तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, टेक द लार्जेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग एंड ड्रॉ द स्केलेटन। इफ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स आर फाइनाइट। अगर फाइनाइट हो तो लार्जेस्ट लेना है, इनफाइनाइट हो तो स्मॉलेस्ट लेना है। इससे आपके डीएफए आसानी से बन जाएंगे। इस ऑटोमेटा पे वापस आते हैं, इस फाइनाइट ऑटोमेटा पे। लेट्स से मेरे पास स्ट्रिंग थी ए बी ए। देखते हैं ये एक्सेप्ट हो रही है या नहीं। तो हमने सबसे पहले कहां पे हैं, Q0 में। Q0 से हमने ए को क्या कर दिया, सीन, ए सीन, इसको काट दिया। तो हम Q0 से कहां पे पहुंच गए, Q1 में। फिर उसके बाद हमने एक और ए सीन कर लिया, तो हम कहां पे पहुंच गए, अभी भी Q1 में ही है। देखो यहाँ पे Q0 से हम गए ए रिसीव करने पर Q1 में। फिर हमने Q1 से एक और ए को सीन किया, तो हम इसी में ही हैं अभी भी। फिर हमने उसके बाद में ए को ये कैंसिल कर दिया, 2 ए हमारे हो चुके हैं सीन। उसके बाद हमने बी सीन किया और हम कहां पे हैं, Q1 में। अभी भी हम Q1 में ही हैं, बी कैंसिल हो चुका। अब हम Q1 से फिर एक और ए को सीन करते हैं और हम अभी भी Q1 में हैं। हमारी स्ट्रिंग हो गई है खत्म। और हम कहां पे हैं, Q1 में। Q1 क्या है, फाइनल स्टेट। दैट मींस दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल। दूसरा एग्जांपल हमारे पास, लेट से एग्जांपल है BAA। हमने क्या किया, Q0 में थे, Q0 से हमने B को सीन किया। Q0 से हमने B को सीन करते ही कहां पहुंच जाएंगे, Q2 में। देखो Q0 से अगर B मिलेगा तो Q2 में जाना है। ये लिखा यहाँ पे, Q0 से B मिलने पे Q2 में जाना है। तो एक B सीन हो चुका है और हम Q2 में आ गए, ये B खत्म। फिर हमने एक A को सीन किया, अभी भी हम Q2 में ही है क्योंकि सेल्फ लूप लगा हुआ है वहां पे, ठीक है। फिर ये A खत्म। फिर एक और A को हमने सीन किया, तो हम Q2 में ही है क्योंकि लूप लगा हुआ है। अब भी हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई है, लेकिन हम किस स्टेट में है, Q2 में। एंड Q2 इज नॉन फाइनल स्टेट। इस बात को समझो, देयर इज नथिंग कॉल्ड डेड स्टेट। ये कोई स्पेशल स्टेट नहीं है, डेड स्टेट कोई स्पेशल स्टेट नहीं होती है। अगर हम Q0 में भी रहते खत्म होने पर, तब भी वो नॉट एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग होती, ठीक है। तो एनीथिंग विच इज नॉन फाइनल, Q1 फाइनल है, Q0 और Q2 नॉन फाइनल है। अगर हम एनीथिंग किसी भी स्टेट में रहते हैं जो नॉन फाइनल है, तो वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्या होगी, नॉट एक्सेप्टेबल। The string will be acceptable only if we will land up in final state at the end of the string. अगर हम at the end of the string पे final state में नहीं है और किसी और state में है, वो किसी और state non final है, वो कोई भी हो सकती है, starting भी हो सकती है और कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, that string is not acceptable. Thank you.